Since its election almost a year ago, the Haryana Sikh Gurdwara Management Committee seems to have a hotline to controversies. The latest controversy erupted with its president Jagdish Singh Jinda approaching the Akal Takht against former chief Baljit Singh Dadubal, who is also the chairman of the Dharm Prachar Committee, to discuss the issue thread, where I have with me my colleague G.S. Paul. Paul, ये latest controversy क्या है कमेटी की? Controversy, as you said in the intro, the controversy is because it is basically a fractured mandate that leads to the feud within the Haryana Sikh body. So, as you said, Jinda has approached the Akal Takht acting Jathedar Gyani Kuldeep Singh Gadgaj, seeking action against Baljit Singh Dadubal, who is the Dharm Prachar Committee chairperson and was also the president of the ad hoc committee when prior to the elections. Well, what are the exact allegations? Allegations against Dadubal was that he has misappropriated the funds that he has accumulated being the chairman of the Dharm Prachar Committee. He said that he spent the money on flashy cars, land, and the money was misutilized. And he also said that he used an abusive language, citing an instance in the past, and said that it was unbecoming of him to use that language being on a decorated post. He is the member of the Haryana Sikh body since long, and now the thing is, it is the prerogative of the Akal Takht acting Jathedar Gyani Gadgaj. Whether he takes cognizance or not, this is yet to see. So, but you know that Akal Takht is the highest Sikh temporal seat. So, all over the globe, the Sikhs, they recognize its decisions and all that. Baki, the politics behind it is still there. हाँ, I remember the politics तो इसकी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की है, बिकॉज इसकी जो डिमांड थी वो 1990s में शुरू हुई थी जी। तो 2005 में जो कांग्रेस जब इलेक्शन लड़ रही थी तो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था भी हम अगर पावर में आते हैं तो आपको एक सेपरेट, बिकॉज टिल बिफोर दिस बॉडी केम इनटू बीइंग द अफेयर्स ऑफ द हरियाणा गुरुद्वाराज, दे आर 52 gurdwaras in Haryana, exactly. 8 of them historical, whose affairs were run by the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee from Amritsar. So there was a long-standing demand from the people of Haryana that we should have a separate body to run the affairs of the Gurdwaras. So जब कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था अगर हम पावर में आते हैं तो एक सेपरेट बॉडी हरियाणा के सिख्स की, सिख संगत की डिमांड पे बनाई जाएगी। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट 2005 में आई तो काफ़ी देर वो इशू ये चलता रहा। फिर 2014 में जब हुड्डा सरकार इलेक्शन में जाने वाली थी, 10 साल हुड्डा, भूपिंदर सिंह हुड्डा सीएम थे हरियाणा के, तो 2014 में उन्होंने एक्ट पास किया, एक हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जो एक्ट पास हुआ 2014 में, वो आपको पता है जैसे वो एसजीपीसी ने उसका काफ़ी अपोज भी किया था, उसको विरोध किया था, है ना। तो आप बिकॉज आप पॉल एसजीपीसी बड़े लंबे समय से यूर ट्रैकिंग एसजीपीसी बिन पोस्टेड इन अमृतसर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उस टाइम एसजीपीसी का क्या रिएक्शन था? एसजीपीसी क्यों, मतलब हरियाणा की सेपरेट बॉडी के क्यों खिलाफ थी? देखिए प्रदीप, ऐसा है कि पहले तो वो ये कहते थे कि ये ऑन फेस ऑफ इट लुक्स लाइक कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ द सिख, यार, एंड यू नो it is Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee. Shiromani means the supreme, yeah, that we call. So you know, during the colonial era before partition, SGPC was taking care of all the Gurdwaras located in undivided Punjab. So post 47, when the partition was there, many of the Gurdwaras, estimated around 72 Gurdwaras, they were left with the Pakistan side. And remaining one were on our side. And when in the 60s, when the division was there and 3 Punjab, Haryana and Himachal came into being. You are talking about the Punjab reorganization. 1966. Exactly. इसमें जो division हुई. Exactly. So, but you know, the states were there. 3 states were there.
but all the gurdwaras were under the control of SGPC only. So after the partition, it is very interesting to note that it was for the first time that Haryana Gurdwara Act came into being in 2014. 14 years. And SGPC saw the cut for the second time on its control. So basically, Pradeep, it is the fight over the control of the Gurdwaras. And Supreme Court, as you know, as you said, that they वो मुझे withheld it. मुझे याद है वो 2014 में जी जब एक्ट बना ना, उसके बाद में एक एसजीपीसी के मेंबर थे कुरुक्षेत्र से, मेरा ख्याल उनका नाम था गुरमीत सिंह जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एक फाइल की कि देखो जी ये जो आप बात कह रहे हो भी, देखो ये जो 1925 का गुरुद्वारा एक्ट था उसके मुताबिक ये सारा चलता है। उन्होंने कहा भी ये जो एक्ट हरियाणा ने बनाया ये गुरुद्वारा एक्ट 1925 के खिलाफ है, और वैसे भी उन्होंने और भी बड़े इश्यूज दिए। सबसे बड़ा था भी ये जुरिस्डिक्शन नहीं हरियाणा गवर्नमेंट की एक्ट बनाने की। तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी देर तक चलता रहा, 14 से लेके वो 22 तक केस चला जी। वो ऑलमोस्ट आप देख लें भी 8 साल वो केस चला। बड़ी एक लंबी लीगल फाइट थी, बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई, एसजीपीसी ने भी अपोज किया, एसजीपीसी भी उसमें पार्टी बनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली एडजुडिकेट ये किया दैट द हरियाणा एक्ट, जो हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक्ट था, हुडा गवर्नमेंट ने पास किया था, वो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही था। एंड द हरियाणा गवर्नमेंट वाज वेल विद इन इट्स राइट टू अनेक्ट अ लॉ ऑन द कंट्रोल ऑफ द श्राइन्स। जो 52 श्राइन 6 श्राइन्स थी, गुरुद्वाराज थे, उसमें 8 हिस्टोरिकल गुरुद्वारा भी हैं, जैसे नाडा साहब हो गया, छेवीं पातशाही हो गया, काफ़ी पुराने जो गुरुद्वारे हैं ना जी। तो उसके बाद में फिर बाय दैट टाइम द पॉलिटिक्स ऑफ इट, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी। सो बीजेपी एज यू नो ये चाहते थे भी सिख वोटर्स को या सिख संगत को अपनी तरफ, इन्होंने फिर एक एडहॉक कमेटी बनाई। खट्टर साहब की जब गवर्नमेंट, खट्टर साहब उस टाइम सीएम थे, बिल्कुल थे। तो उसमें जो ये प्रेजेंट चीफ हैं झिंडा साहब, झिंडा साहब को एडहॉक कमेटी, जो 41 मेंबर एडहॉक कमेटी बनी, झिंडा साहब वाज अपॉइंटेड एज एडहॉक चीफ ऑफ दैट कमेटी। तो झिंडा साहब पहले भी ये रहे, पहले भी हुड्डा के टाइम में भी रहे। तो उस टाइम ये 14 से लेके ऑलमोस्ट 20 तक रहे। तो उसमें बिकॉज झिंडा साहब का काफ़ी एक लंबा एक्सपीरियंस, उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया उस चीज़ के लिए। इनफैक्ट झिंडा साहब वाज द वन विद दलबीर सिंह नकवी, हाँ, जो नलवी जिन्होंने ये सारा फाइट किया उसमें दादूवाल साहब की भी कंट्रीब्यूशन रही, क्योंकि ये भी काफ़ी एक बड़ा नाम है सिख पॉलिटिक्स में, है ना, सिख संगत के जैसे बात। फिर ये 2-3 चीफ बीच में और भी रहे, करमजीत सिंह रहे, एक वो हमारे भूपिंदर सिंह असंध थे, वो भी बीच में इंटरम चीफ रहे। तो ये इनकी दादूवाल साहब की हो, नलवी साहब की हो, या असंध साहब की हो, या झिंडा साहब की कंट्रीब्यूशन काफ़ी रही, बिकॉज ये इन्होंने बड़ी लंबी फाइट, एक लीगल फाइट भी की, एक रिलीजियस लेवल पे भी, स्पिरिचुअल लेवल भी फाइट की, और एक पॉलिटिकल फाइट भी इन्होंने की। ये परस्यू करते रहे। पर ये मैं जानना चाहता, जब ये 2025 में इलेक्शन हुए, तब आप जैसे आपने बोला भी फ्रैक्चर मैंडेट एक आई, तब सिनेरियो क्या था, मतलब किस लिए कंट्रोवर्सी? सिनेरियो ये था कि इसमें जो इंडिपेंडेंट्स थे उनकी मेजॉरिटी थी, 21-22 वो थे। हाँ, 22 से 24 40 थे टोटल 40 का हाउस है ना इनका। 49 का हाउस है, 40 इलेक्टेड है और 9 जो है वो कोऑप्टेड है। वो गवर्नमेंट जनरल हाउस ने अपने आप वो है, और वो कोऑप्टेड में बलजीत सिंह दादूवाल है जो उसके मेंबर भी। बिकॉज आई रिमेंबर बलजीत सिंह दादूवाल जब 2025 में इलेक्शन हुए, ये कल्याणवाली से इलेक्शन हार गए इंटरेस्टिंगली, बिकॉज ऑल्दो ही वाज अ बिग नेम इन सिख संगत एंड ऑल दैट, बिकॉज ही वाज एट द फोरफ्रंट ऑफ ऑल, एंड ही इज यू नो politically also very well connected. So ये इंटरेस्टिंग इलेक्शन हार गए थे। सो गवर्नमेंट ने कहा, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट में काफी पैठ थी, तो गवर्नमेंट से इन्होंने किसी तरह के ये फिर नॉमिनेटेड मेंबर उसके बने। सो ये मैं जानना चाहता इनकी द पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा और एसजीपीसी, देखिए तो ये मतलब इनका क्या आपस में क्यों ये इतना लड़ते झगड़ते? देखिए, जो ऑन फेस ऑफ इट लगता है, पहली बार इनका इलेक्शन हुआ, पहली बार इनका बजट पास हुआ, उसी में ही कंट्रोवर्सी होगी। वो मैं 104 करोड़ का बजट, 104 करोड़ का बजट था। जनवरी 7 को मीटिंग हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल हुई थी। और उसमें जो फैक्शन वॉकआउट करके आ गया था
उसमें वो नलवी साहब और अपना बलजीत सिंह दादूवाल साहब, वो एक ही है ये हाँ, ये दोनों इन्होंने क्लब हो गए थे और इनके साथ 17 के करीब ये क्लेम करते हैं मेंबर्स जो थे वो वॉकआउट कर गए 49 में से जी। तो अब वो मैंडेट को करने के लिए ये आपको ये चाहिए कि उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कोरम पूरा होने के लिए, कोई भी चीज़ अगर पास करनी है आपने। अब झिंडा साहब जो थे उन्होंने ये क्लेम किया कि हमारे पास 33 का मैंडेट था जिसकी वजह से फिर हमने ये पास कर दिया। मतलब ही क्लेम्स 2/3 मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी थी। ये कहते हैं कि उनके पास 24 से ऊपर मेंबर ही नहीं थे क्योंकि 17 तो हमारे साथ थे, कुछ एक दो बाहर मुझे थे। याद है शायद एक पैरेलल मीटिंग भी नाडा साहब गुरुद्वारा में वही उसी मीटिंग की बात कर रहा हूँ, वो नाडा साहब ही 17 बंदे आ गए थे। हाँ, ठीक। तो वो दादूवाल साहब ही लेके के सपोर्ट में ही आए थे बाहर, तो उन्होंने वो कर दिया था। और इनफैक्ट ये जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा जुडिशियल कमिशन है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें इन्होंने चैलेंज भी कर दिया। तो जो इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, हाँ जी, उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब वो उन्होंने आगे ये कर दिया कि आप जो इनके फंड्स हैं उसको फ्रीज कर दिया कि आप इनको जो छोटे मोटे फुटकल खर्चे हैं उसको छोड़ के। आई रिमेम्बर ये जो गुरुद्वारा जुडिशियल कमीशन का डिसीजन था जी, उन्होंने जो इनके बजट पे जो मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वो रोक लगा दी। बिकॉज आप हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें, बिकॉज हरियाणा जो सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, इन्होंने एक अमृतसर में भी सराय लेने का एक प्रपोजल डाला हुआ है। पहले इन्होंने मेरे ख्याल जहां तक मुझे याद है एसजीपीसी को इन्होंने कहा था भी हमें एक सराय दो आप। भी हरियाणा के काफी लोग पिलग्रिम्स हैं, वहां जाते हैं, उनको रहने की दिक्कत होती है। फिर आई थिंक दे मूव्ड अ प्रपोजल भी हम अपनी लैंड खरीद के एक सराय अपनी बनाए। वो एक्चुअली दूसरा फिर जो गुरुद्वारों के साथ लैंड लगती है, इनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हैं कुछ, इन्होंने उनको भी एक्सपेंड करने का एक प्लान काफी बनाया था। वो मेरे ख्याल जुडिशियल कमीशन के ऑर्डर के बाद वो दैट हैज बीन पुट ऑन होल्ड। लेकिन प्रदीप जी इसमें क्या है कि जो मुझे लगता है इनमें ये आपने बताया जैसे ये जो हरियाणा के जो ये सिख लीडर्स हैं ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन ये मेच्योरिटी नहीं इन्होंने दिखाई कोई। अब अगर ये मेरे हिसाब से अगर ये एक इस तरह से चलते सबको साथ लेके, जिस तरह से इन्होंने इलेक्शंस करवाए, यही दादूवाल साहब जो थे इन्होंने झिंडा को सपोर्ट किया था प्रेसिडेंट बनाने में। जी हाँ, आपको याद होगा उस वक्त। तो इसी तरह से एक बजट पास करना था तो वो सबको साथ लेके चलते। ये आपके कहने का मतलब इनकी इनफाइटिंग है। हाँ, इनफाइटिंग मतलब दे आर नॉट पुटिंग जो पर्सनल ईगोज और इश्यूज बड़े आगे, मतलब सियाने वाली बात नहीं। देखो ये तो सब कुछ रुक जाएगा ना जी, सब कुछ रुक गया, उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट की फिर इंटरफेरेंस आ जाएगी, फिर वो आगे और फिर जो है वो बनेगा, इसका फिर खराब ही होगा ना, बैड टू वर्स ही जाएगा। हाँ, बिकॉज उसमें देखो गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन है, बिल्कुल जुडिशियल कमीशन उनका बनाया हुआ है। एक तरह गवर्नमेंट के पास फंड्स की बड़ी डिस्कशन होती है, और दूसरा आप चाहे हम माने ना माने अगले साल पंजाब के इलेक्शन भी आने वाले हैं, एक सिख वोटर्स को वो भी एक चीज, आप उसको कैसे देखते हैं, मतलब ये हाउ दिस प्लेइंग आउट द पॉलिटिक्स ऑफ दिस, बिकॉज सिंस यू हैव बीन कवरिंग एसजीपीसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो पॉलिटिक्स कैसे प्ले करती है, ऑल्दो इन अ सटल वे, कैसे प्ले आउट करती है? देखो पॉलिटिक्स तो करती है। अगर आप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें, इस वक्त डोमिनेंस जो है वो श्रोमणी अकाली दल शुरू से रही है। हाँ, शुरू से रही है। जो इस वक्त जो मेन स्ट्रीम में अकाली दल है जिसको हम लीड कर रहे हैं सुखबीर सिंह बादल, तो उसमें अब इन्होंने हरियाणा कमेटी जो बनवाई थी वो इसलिए बनवाई थी कि हम जो है हम पीछे रह जाते हैं, लाइक अ सेकंड सिटीजन हमें ये ट्रीट करते हैं, ये भी हमें वो देते नहीं हमारा, इसीलिए इन्होंने ये मांग उठाई थी। अब इन्होंने सेपरेट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो इनको चाहिए था कि ये सबको साथ लेके चलते और एक कंस्ट्रक्टिव वे में ये सारा कुछ आगे करते। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस आ गई ना तो ये फिर सब कुछ स्टॉल हो जाएगा। जी फिर ना कोई वेलफेयर के लिए कुछ काम कर पाएंगे, ना ये कोई प्रोजेक्ट अपना कर पाएंगे। बिकॉज आई थिंक जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक जैसे एसजीपी की तरह पे देयर आर नॉट लॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनकी और भी वेलफेयर एक्टिविटीज बड़ी होती हैं। बिल्कुल गुरुद्वारा में जो वेलफेयर एक्टिविटीज देखो दैट मींस मतलब नाउ द एवरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीन स्टॉल्ड। अब आप रूटीन अपना काम कर सकते हैं, जुडिशियल कमीशन का ऑर्डर है। जी हां। सो ये मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो Paul, because अब झिंडा has approached the अकाल तख्त against दादूवाल, मतलब what is the next step forward, how अकाल तख्त can intervene, what are the possibilities of human what I presume is that it's going to be a blame game from both the sides.
Now, Dadwal has already filed a defamation against Jinda, Okay. that you have tarnished my image. What his version was, that the complaint against him was filed earlier also, during the time when Gyani Raghbir Singh was there. The same instance, Jathedar. yes, the same instance that he used abusive language, it was an old instance. So, in that matter, the Akal Takht, the then Akal Takht Jathedar has conducted an inquiry and given him a clean chit. Okay. He has got the clean chit letter with him of the Akal Takht. That is the same complaint Jinda has filed again. Again. So it does not have any relevance, in present times. He is not going to challenge it. Okay, when the Akal Takht had already given me a clean chit, there was no point complaining again on the same issue. Regarding the misappropriation of funds, he said, I am open for any kind of inquiry. If you say, whatever he has done for the Haryana Sikh body only. So, I mean, it's now going from bad to worse. So, blame game, this and that, controversies would be there. So you foresee a long drawn out legal Yes. battle and legal come religious battle between different factions. Exactly. Because the Haryana Sikh Gurdwara Management Committee has a number of factions. Yes. And nominated members also belong to different factions. Yes. So you foresee in the short run you don't see any common Exactly. ground between them. Exactly. So you foresee a long drawn out battle. Exactly. That we come to the end of another edition of Decode Haryana. Thank you, Paul, for putting perspective to the latest controversies surrounding the Haryana Sikh Gurdwara Management Committee. Do follow us on our social media platform at the Tribune, and do subscribe to our hugely popular newspapers, The Tribune, Dainik Tribune and Punjabi Tribune. Thanks for watching.